Hello, welcome students. Today we are going to start the next lesson, Microsoft Word 2010, third part. The first thing that we are going to discuss here is inserting graphics in MS Word. See, graphics means pictures, images, clip art, etc. makes the document looks more attractive, and we can explain the concept very easily if we have graphics or pictures as proof of the text. So it is very important to include graphics and images in your document, and today we are going to talk about how we can insert them in our MS Word document. So when you create a text document using Word, you may need to include some graphic illustrations. Graphics are added to textual document for a wide variety of reasons, from supporting the description provided in the text to providing an immediate visual impact of the contents. तो ग्राफिक्स को हम कई सारे कारणों से अपने डॉक्यूमेंट में रखते हैं। जो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हमने कोई चीज़ टेक्स्ट के फॉर्म में रखा हुआ है तो उसको पढ़ के लोग या जो भी उसके रीडर्स हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो जान पाएंगे, लेकिन अगर हमने पिक्चर या ग्राफिक्स के फॉर्म में उसका इलस्ट्रेशन भी दिया है तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर द रीडर्स. The Word has three types of graphic illustrations. First, image file including photographs, drawings, scanned images, map, sketches and similar type of materials. तो पहली चीज़ जो हमारे पास हो सकती है वो इमेज फाइल हो सकती है, जो .jpeg, jpg, png, gif इन सब के फॉर्मेट में हो सकती है, जिसमें हमने कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक किया है वो हो सकता है, या कोई ड्राइंग हो सकती है, या स्कैन्ड इमेज हो सकता है, मैप, स्केच. तो इन टाइप की जो चीज़ें हैं वो इमेज फाइल के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनको हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, डायग्राम विच कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ड्राइंग टूल. तो इस पार्ट के अंदर हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही ड्राइंग टूल्स का यूज़ करके हम कुछ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम एज अ इलस्ट्रेशन, एज अ ग्राफिक्स हम अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ चार्ट्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग चार्ट फैसिलिटी. So I think you all have studied about the chart in previous class, that means class 8, bar chart, column chart, area chart, donut chart. So if we are having tabular data, so on the basis of that data we can create a chart very easily that gives a good graphical representation of the text that you might have in the form of table. So we can add these three things in our MS Word document. Now here you will learn about the first two topics of graphics, illustration, that is image file, and diagrams. The first thing is inserting images in a document. So if suppose in your computer in some folder you are having an image file stored already and you want to add it to your MS Word document, so at that time you need to follow the steps that are given here. The first of all, according to your book, images, pictures can be inserted from a variety of sources. They may be downloaded from the internet, scanned, or created with a graphics program, or they may be photos taken with your digital camera or mobile phone.
तो जो आप इमेजेस अपने डॉक्यूमेंट में रखेंगे वो कई सारे सोर्सेज से आया हुआ हो सकता है। जैसे आपने इसे किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया यूजिंग इंटरनेट, or it can be a scanned file or a scanned image, or it can be created using some graphics application like Adobe Photoshop or MS Paint etc. या ये कोई फ़ोटोग्राफ हो सकती है जो आपने डिजिटल कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से क्लिक किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब अपने कंप्यूटर में रखते हैं तो वो इमेज फॉर्म में स्टोर होती है और इसका एक्सटेंशन होता है या तो .jpeg स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिकली इंटरचेंजेबल फॉर्मेट एंड BMP बिटमैप इमेजेस। तो इन्हीं में से कोई फॉर्मेट में आपने अपने इमेज को स्टोर किया है तो आप उसको अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। मतलब आपके पास कोई फाइल है और उसमें से आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इंसर्ट एन इमेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट which is already available on the computer. Word can import various types of format. The most common types are GIF, JPEG, JPG, PNG and BMP. तो ये जो सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट्स हैं तो इनको आप चाहें तो इन फॉर्मेट के इमेजेस को आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इनका फुल नेम अभी मैंने बताया है, आप रिवाइंड करके उसे दोबारा से सुन सकते हैं। नाउ इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल प्रोसीड एज फॉलोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द पिक्चर बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे पहले टेबल्स होगा और उसके बाद यहाँ पे होगा आपका इलस्ट्रेशन। तो आपको इस इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ बटन में ये देखिए, ये पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ यूज टू इंसर्ट पिक्चर, द सेकेंड ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, थर्ड ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट शेप, फोर्थ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, फिफ्थ टू इंसर्ट चार्ट एंड सिक्स्थ टू इंसर्ट स्क्रीनशॉट। So you need to click on the very first option, that is to insert picture. When you click on it, insert picture dialog box appear। तो insert picture dialog box जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से आपका appear हो जाता है आपके स्क्रीन पे, जिसमें इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप, डाउनलोड और ये फोल्डर्स और लोकेशंस होती हैं और यहाँ पे जो आप करेंटली सेलेक्ट किए हो फोल्डर उसके कंटेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो टूल्स में इंसर्ट बटन होता है और कैंसिल बटन होता है। इंसर्ट बटन का यूज़ करके यू कैन इंसर्ट एंड इफ़ यू प्रेस कैंसिल बटन देन द प्रोसेस विल बी कैंसिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to click on insert tab and then select picture button in the illustration group. This dialog box will appear. Now browse the picture you wish to insert and choose the desired file and click on the insert button. तो इसके लिए आपको ब्राउज करना है अपने इमेज फाइल को और उसे चूज़ करके इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो जहाँ पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट था आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे आपकी जो इमेज फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको करने का एक और तरीका है। इसको करने का तरीका क्या है कि सपोज़ कीजिए आपके कंप्यूटर में एक कोई फ़ोल्डर आपने ओपन कर लिया और वहाँ पे कुछ इमेज फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं, ये इमेज फाइल है। तो आपको करना ये है कि आप जब भी अपने कंप्यूटर में काम करते हैं तो जैसे मान लो ये कंप्यूटर का स्क्रीन है और यहाँ नीचे आपका टास्क बार है।
अब टास्क बार में अगर आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो यहाँ पे एक W लिख के एक वर्ड का आइकन यहाँ पे टास्क बार में रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरा मिनिमाइज़ कर लीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद फोल्डर ओपन कीजिए और फोल्डर में से जो इमेज फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब इस इमेज फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इस वर्ड पे लेके जाएंगे। तो ड्रैग करके जब आप टास्क बार में वर्ड के आइकन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। अब MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बिना लीव किए उसको ले जाइए और ड्रॉप कर दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से ड्रैग किए, वर्ड आइकन प्रेस किए, पे ले गए। वर्ड आइकन पे जब आप लेके गए तो MS वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल में जाइए और डिजायर्ड लोकेशन पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये भी एक तरीका है बाय विच यू कैन इंसर्ट एन इमेज। एक और तरीका होता है इमेज को इंसर्ट करने का। जस्ट सिंपली सेलेक्ट द इमेज फाइल टू बी इंसर्टेड एंड प्रेस Ctrl+C और राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन। तो आप उसे कॉपी कर लीजिए और वर्ड फाइल में आके इधर प्रेस Ctrl+V और राइट क्लिक एंड पेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। जो आपकी इमेज फाइल है दैट वुड बी पेस्टेड ऑन द वॉल एंड इट विल बी अपीयर्ड। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप इमेज फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, बाय योर बुक, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन पिक्चर बटन ऑन इलस्ट्रेशन ग्रुप and select and browse and select the picture to be inserted and click on insert button. Secondly, you can drag and drop, and thirdly you can copy paste. Now the second thing is inserting images from other sources. See, you can also insert images from various sources other than a file stored on your computer. तो कंप्यूटर पे जो फाइल स्टोर है उसके जगह पे आप और भी सोर्सेज जैसे ग्राफिक्स प्रोग्राम, लाइक ग्राफिक्स प्रोग्राम में आप देखोगे तो अगर आपने कोई इमेज बनाया हुआ है एडोब फोटोशॉप में या आपने इमेज बनाया हुआ है MS पेंट में, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। सेकेंडली, यू कैन यूज़ गैलरी और क्लिप आर्ट, एंड थर्ड यू कैन यूज़ स्कैनर। The first, inserting images from graphic program. The various graphic program can be used to edit a graphic file. Using these program, you can select, copy and paste an image or part of the graphic into a Word document. Let's see an example. So see, in graphic program window such as MS Paint, select the area of the image to be copied. तो सबसे पहले आपने कोई इमेज फाइल ओपन कर ली अपने MS पेंट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं MS पेंट का विंडो ओपन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंट। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लिया। अब उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया जिस एरिया को आप MS वर्ड में लेके जाना चाहते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, या कोई भी आप सिलेक्शन टूल यूज़ करके सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है Ctrl+C, यू नीड टू प्रेस Ctrl+C। फिर आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आइए एंड प्रेस Ctrl+V। योर इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज विल बी कॉपीड एंड पेस्टेड। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे Ctrl+A आप यूज़ कर सकते हैं। अगर Ctrl+A आप प्रेस करेंगे तो पूरी इमेज फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे फिर Ctrl+A करने के बाद फिर Ctrl+C आप यूज़ कीजिए, कॉपी हो जाएगी और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। तो C, in the graphic program window such as MS Paint, select the area of the image to be copied. Move the cursor over the selected area and press Ctrl+C to copy. Now switch to the Word document. Click on location where the graphic is to be inserted and paste Ctrl+V to paste the image. Now you can see your image will be appeared on the MS Word document. So this is the second thing that we can do here. Now next thing is inserting images from clip art.
So I think all of you are aware of it, because I think you all are using MS Word from class third standard, and most of the student enjoy using clip art. So I think all of you have a very much glimpse of what clip art are, but we are going to read it here. On insert tab in the illustration group, click on the clip art option. The clip art option appear in the task pane on the right. तो जब आप क्लिप आर्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो क्लिप आर्ट का जो टास्क पेन है वो आपको राइट में दिख जाएगा। अब इसमें आपको पता ही है, सर्च फॉर में जाके हम टाइप कर देंगे जिसको हमें ढूंढना है, जिसके क्लिप आर्ट को हमें ढूंढना है, और उसके बाद गो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगी। इमेज पे डबल क्लिक कर देंगे, जो इमेज है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी। तो इंटर कीवर्ड इन द सर्च फॉर फील्ड दैट आर रिलेटेड टू द इमेज यू विश टू इंटर और इंसर्ट, और टाइप द फाइल नेम ऑफ द क्लिप आर्ट। To narrow down your search, do the following. Click on the down arrow in the result should be filled and deselect any type of image you do not wish to use. Now click on go button in the displayed list of results. Select the clip art to be inserted in the document, or click the drop down arrow next to the image in the task pane and select an insert or copy or any other option from the list. In the clip art task pane, you can also search for photograph, video, audios to include any of these media type. Select the required checkbox and insert them in your document. So this is how you can insert clip art into your document. Now, next thing is इंसर्टिंग इमेजेस फ्रॉम स्कैनर। तो देखिए यहाँ पे, इफ़ अ स्कैनर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, वर्ड कैन कॉल द स्कैनिंग एप्लीकेशन एंड इंसर्ट द स्कैन्ड आइटम इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट एज एन इमेज। तो अगर आपके कंप्यूटर से स्कैनर कनेक्टेड है तो आप चाहें तो किसी स्कैन्ड इमेज को अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली स्कैन करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ हैंड रिटन मटेरियल रखा हुआ है, या बुक का कोई पेज है, या कोई भी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि स्कैन करके MS वर्ड के अंदर इंसर्ट करना, तो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग योर स्कैनर। तो in Office 2007, when you choose Insert and Clip Art, you will find Organize Clip option at the bottom of the Clip Art task pane. But this option no longer exists in Office 2010 application. The direct link to Clip Art Organizer has been removed in 2010. Office 2010 to access Clip Organizer, follow the step. तो इसके लिए आपको ये काम करना होगा। पहले सेलेक्ट द स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 टूल्स, देन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर ऑप्शन। तो इसके लिए पहले आपको स्टार्ट बटन कंप्यूटर में प्रेस करना है, फिर ऑल प्रोग्राम में जाइए, फिर MS ऑफिस में जाइए, फिर MS ऑफिस 2010 में टूल्स में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में जाइए। द फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर विल अपीयर। ये आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर है, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द फाइल टैब। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फाइल टैब है यहाँ पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब, सम लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल ओपन लाइक न्यू कलेक्शन, ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइजर एंड एग्जिट। तो यू नीड टू सेलेक्ट ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइजर, दिस ऑप्शन जो येलो बैकग्राउंड में दिख रहा है, एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। तो उसके बाद ये स्कैनर या कैमरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द स्कैनर डिवाइस एंड रेजोल्यूशन, क्वालिटी, एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। वेट until the scan is done and then click on the folder with your scanner name under My Collection section.
You can see the scanned image in it. Close Microsoft Clip Organizer. Now open Microsoft Word document in the Clip Art pane. Click on Go button. The scanned image appears. Click on the image to insert it into your document. तो सबसे पहले आपको Microsoft Clip Organizer ओपन करना होगा, जो Microsoft Office 2010 टूल्स के अंदर होता है। वहाँ पे आप ऐड क्लिप ऑर्गेनाइजर में जाएंगे, वहाँ उसमें फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ऑप्शन में जाएंगे, अपने स्कैनर को सेलेक्ट करेंगे और स्कैन बटन प्रेस करेंगे। स्कैनिंग होगी, जो इमेज फाइल है वो आपके क्लिप आर्ट के फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिप आर्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जो आपकी इमेज फाइल है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसे आप वहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ a way by which you can insert the scanned images. Now next topic is working with shape. तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा कि अगर हम कोई इमेज फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं जो फाइल के फॉर्म में हो, या हम फोटोग्राफ क्लिक करके इंसर्ट करना चाहते हैं, या क्लिप आर्ट के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं, या स्कैन करके इंसर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी कैन डू। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट एन इमेज फाइल इन MS Word. सो एट दैट टाइम वी कैन यूज शेप ऑप्शंस। शेप क्या होती हैं? ये डिफरेंट एक तरीके से कह लो कि शेप्स हैं, डायग्राम्स हैं जो ऑलरेडी MS Word में अवेलेबल होती हैं, जैसे रेक्टेंगल, एरो, ट्रायंगल। ये सारी जो शेप्स हैं, लाइन, ये आपके MS Word में अवेलेबल होती हैं। यू कैन यूज़ दो शेप टू क्रिएट योर ओन डायग्राम। तो इन Microsoft Word, shape is a drawing feature that help you to draw different shapes like stars, banners, callouts, connectors, etc. With the help of these shapes, you can draw attention and provide impact to your message. To insert shape, follow these steps. So first of all, click on the shapes button in the illustration group on the insert tab. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा insert टैब में। तो insert टैब में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पिक्चर बटन होता है, फिर क्लिप आर्ट होता है, फिर उसके बाद शेप होता है। तो नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन शेप। पिक्चर और क्लिप आर्ट मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन शेप। जब आप शेप पे क्लिक करेंगे तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके शेप की वो ओपन हो जाएगी, जिसमें रिसेंटली यूज शेप होंगे, लिंक्स होंगी, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन, फ्लो चार्ट एटसेट्रा। तो दीज शेप विल appear in front of you. तो a drop down menu display various options such as lines, basic shapes, block arrows, equation shapes, flowchart, stars and banners, callouts, etc. So these will appear on your screen. Now point to the basic shape and click on smiley face. तो बेसिक शेप में हम गए और बेसिक शेप में अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्माइली फेस है जो येलो बैकग्राउंड में आ रहा है। तो हम बेसिक शेप में जाके स्माइली फेस पे क्लिक करेंगे। आप किसी और पे भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब हमें स्माइली फेस लगाना था तो हमने स्माइली फेस पे क्लिक किया। नाउ द पॉइंटर चेंजेस टू प्लस आइकॉन। तो जो आपने एक कोई भी शेप सेलेक्ट किया तो आपका जो पॉइंटर है उसका जो शेप होगा वो अब प्लस आइकन का हो जाएगा। The pointer changes to plus, that is crosshair symbol. Drag it to the working area to draw the shape. तो आप अपने वर्किंग एरिया में जाइए, तो यहाँ पे शेप में प्लस आइकन आया। अब यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कीजिए। तो जैसे आप ड्रैग करोगे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आ जाएगा, और जितना आप ड्रैग करते जाओगे उतना बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, और उसी में बॉक्स में जो आपकी शेप है वो इस तरीके से बन जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके कुछ हैंडलर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक शेप बनाया, तो शेप का आउटलाइन ये होगा।
अब यहाँ से ऊपर करके ग्रीन कलर का एक डॉट होगा और इसके बॉर्डर्स पे भी कुछ डॉट्स लगे रहेंगे। तो आप इसका यूज़ करके, इस ग्रीन कलर वाले का यूज़ करके आप रोटेट कर सकते हैं अपने शेप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप इन बॉर्डर हैंडलर्स का यूज़ करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो इंक्रीज़ होगा, इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो डिक्रीज़ होगा इसकी साइज़। नाउ द फॉर्मेट टैब विल ऑटोमेटिकली अपीयर व्हेन यू ड्रॉ द शेप। जो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट टैब एक कॉन्टेक्चुअल टैब यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट एनी शेप स्टाइल फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट इन द शेप स्टाइल ग्रुप and click on more drop down menu to select and change the overall visual style of the shape. And now by using shape style you can represent it in 3D form, 2D form. You can change its color, you can have shadow, background etc. तो वो सारे शेप इफेक्ट आप वहाँ पे फॉर्मेट टैब का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि how we can insert shapes in the document. Now student, please do the same thing in your computer, because in mobile phone this is not going to be available properly. So if you want to use it, you have to use your computer to draw the shapes in your MS Word document. Now moving forward, the next topic is bullets and numbering. तो देखो, बुलेट और नंबरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए, तो उसके लिए हम बुलेट्स या नंबर का यूज़ करते हैं। इससे हमारी एक लिस्ट क्रिएट होती है जो या तो बुलेटेड लिस्ट होती है या नंबर्ड लिस्ट होती है। तो अ लिस्ट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स, names or sentences written on printed consecutively one below the other. A bullet is a small graphic symbol that makes an item in a list. You can format list in a document by using bullet and numbering commands. तो बुलेट और नंबर लिस्ट हम बनाते हैं जिसका यूज़ करके हम चीज़ों को और अच्छे एट्रैक्टिव वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुलेट छोटे छोटे ग्राफिक सिंबल्स होती हैं और नंबर्ड लिस्ट आपको पता है कि 1 2 3 या ABCD इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो दिस पैराग्राफ इज़ आल्सो अ लिस्ट वेयर दिस वन इज़ अ बुलेट, दिस वन इज़ अ बुलेट। तो ये 4 बुलेट्स यहाँ यूज़ किए गए हैं और ये जो लिस्ट है वो क्रिएट की गई है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि इसको समझना आसान हो जाता है, ये क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो लेट अस नाउ लर्न हाउ टू क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ईदर ऑन बुलेट्स और नंबरिंग आइकन ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में आप या तो इस आइकॉन पे क्लिक करें जो बुलेटेड वाला आइकॉन है बुलेट्स का, या 1 2 3 जो नंबर्ड लिस्ट है इस आइकन पे प्रेस करें। तो अगर आप बुलेटेड लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो ये आपको अपीयर होगा और नंबर्ड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन अपीयर होंगे। तो बुलेटेड लिस्ट में आप देखो सबसे पहले रिसेंटली यूज्ड आता है, फिर बुलेटेड लाइब्रेरी में नन होगा, फिर डॉट होगा, फिर सर्किल होगा, फिर स्क्वायर होगा और भी बहुत सारे बुलेट्स होते हैं। और अगर आप नंबर्ड लिस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, रोमन में 1 2 3, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, तो इस फॉर्म में ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। तो सेलेक्ट द डिजायर्ड बुलेट और नंबरिंग स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। एंटर द टेक्स्ट एंड प्रेस द एंटर की इन द एंड। अ न्यू बुलेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट लाइन। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नाउ तो अभी आपने ये देखा कि ये जो बुलेट्स हैं या नंबर्स हैं इनको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। बुलेट हम लगाते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक सिंबल्स आती हैं और नंबर्ड लिस्ट हम लगाएंगे तो 1 2 3 या ABCD इस फॉर्म में चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। नाउ
If suppose we want to change the bullet shape, then how we can do this? तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि टू यूज़ सिम्बल्स एज बुलेट। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्री डिफाइंड बुलेट्स हैं इनके जगह पे कोई सिंबल को हम एज अ बुलेट यूज़ करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग लिस्ट and click on the drop down arrow next to the bullet button on the home tab। तो ये लिस्ट हमारी ओपन हो जाएगी। नाउ सेलेक्ट द डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज डिफाइन न्यू बुलेट बटन। द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आप देखोगे इस तरीके से आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन आता है सिंबल, दूसरा ऑप्शन आता है पिक्चर और तीसरा ऑप्शन आता है फंट। तो अगर आप सिंबल्स को एज अ बुलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंबल पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर है उसको आप एज अ बुलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप कोई फंट को एज अ बुलेट यूज़ करना चाहते हैं तो यू नीड टू क्लिक ऑन द फंट। नाउ click on the symbol button। the symbol dialog box appears like this। जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये symbol dialog box ये appear हो जाएगा। inserting symbols मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपने ये dialog box देखा था। now click on the font drop down box and select the desired category। जैसे यहाँ पे symbol है, थोमा है, टार्जन है, टीम व्यूअर है, तो ये इसमें से जो भी आपको symbol है वो आप select कर लीजिए। Now various symbol relevant to the selected font appear in the dialog box। select a symbol by clicking on it and click OK। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो सिंबल है, ये जो पाई का सिंबल है, ये हमारा बुलेट की जगह पे आ जाए, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ओके बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ओके करेंगे, वो जो सिंबल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। द सेलेक्टेड सिंबल विल नाउ अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शन ऑफ द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स। क्लिक ओके। द सिंबल विल अपीयर एज अ बुलेट इन द लिस्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अ बुलेट इन अ न्यू बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट इनटू योर डॉक्यूमेंट। अब ऐसे ही अगर आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं एज अ बुलेट, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर बटन प्रेस करेंगे, फिर वहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा, ब्राउज़ करेंगे अपने इमेज फाइल को और फिर उसको वहाँ पे ब्राउज़ करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। वो जो इमेज फाइल है वो आपके बुलेट की लिस्ट में आ जाएगी। मतलब जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे इस लिस्ट में अब नई आइकन यहाँ पे बन के एक आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे और वो जो इमेज है या सिंबल है वो एज अ बुलेट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट बुलेट्स, न्यू बुलेट इनटू योर डॉक्यूमेंट। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम inserting tables in your MS Word document। Hope you all understand it। Please try to execute all these things practically in your computer, and in case of any doubt please feel free to contact। Thank you।